Welcome back to Technophile Society, where we dive into the world of technology and innovation. I'm your host, Aditri R, and today we have a fascinating guest with us, Sayam Jain, a renowned machine learning engineer. Sayam is here to give us an insider's look into what a typical day in his life looks like. Whether you're an aspiring ML engineer or just curious about the field, you're in for a treat. Welcome, Sayam. Thank you. Thank you for inviting me, Technophiles. Yeah. So yeah, let's begin. Here. Fantastic to have you here. To kick things off, can you tell us a bit about your background and how you started in machine learning? So it goes back to I guess my 11th or 12th. I was watching a video of Mark Zuckerberg automating his home via Python. Okay, like computer vision camera is there saying, "Mark, your parents have come." Okay, he's saying, "Okay, Jarvis, give a lullaby to my children," and all. So I was very fascinated. Okay, so like from Python you can automate your home. So I thought, okay, why should I not automate my home to to make things easier for my parents? So then how I started with Python. So I learned a little bit Python in 11th and 12th via YouTube. In my school, they used to teach C++. I guess I was the last batch of my board in C++. Okay. So I learned a little bit Python then. So like from that only my like journey started. Like I thought, okay, in Python, what else is there to be done? Okay, in field like okay in Python, there's this backend you can do in website. Like there is Flask and other frameworks. Then in Python, if you are very maths lover, then Python plus maths gives you data science. Then, if you have Python, you can go for ROS and you can do robotics. There are many things you can do with Python, right? Python is a framework, it's a tool basically. So then I thought, okay, my main interest lies in maths because I loved stats. Yeah. I don't know why I loved stats. So basically, I even started. There was some book of economics plus there was some book of stats also. My sister recommended to me, so I studied that also. So I just got an interest. Okay, this is the statistics, and this is how we derived this regression techniques, how we have so much of classical ML that is derived from statistics, okay, and game theory as well. So then just started my whole ML journey from there, okay. In what statistics I should learn, how there is calculus, how linear algebra. Then okay, I started. My family is a bit a mix of corporate plus business, right? So I have both perspectives. Okay? So they used to say, okay, Sayam, you should do that, you should do that. I always had some guidance, right? So I got to know a student like me who is from a tier 3 or tier 2, I don't know where Manipal will lie in tier 2 or tier 3, but let's say it lies in the middle, not tier 2, not tier 3. So for people like me who are not in IITs per se, so in tech, I have to give some X factor to some, okay, to hire me, to like to work with me, right? So then how I started to do all the things applied basically. I started doing projects, I started cold mailing people. I started to go, can you give me this opportunity? Can you get me this opportunity? Then I started my whole ML journey from there. I cold mailed people, I interviewed, I worked, and just I did the ladder. Yeah. That's a great journey. Now let's get into the daily grind. Can you walk us through a typical day for you as an ML engineer? What's the first thing you do when you start your day? When I first started, what I usually do, I first go to like the founder of the company and the senior ML engineer, and we just discuss, okay, what are the daily tasks we have to do. What sometimes I like split my screen into half. I do the daily task side by side. I read the latest research paper, whatever is coming, so which is relevant to my field, right? Let's say which is relevant to my task. Okay, I can implement this. I can implement this. Then for like half an hour and all, I just think, okay, what should I do? Brainstorming is more important, right? Because anyone can code nowadays. You are given money for your thinking, for your skills, for your communication. So I just practice on that, and just that's how the day was usually. Like I did a task, I gave it to my founder. Okay, this and that's we do. We did some meetings, like me, my founder, the ML team. Okay, what did we learn today? What we're going to learn tomorrow, and what we implemented today. That's how we keep a learning cycle, such that let's say if you want to work with me, I'm giving you something in return, right? Not money. Anyone can give, right? Let's say if I'm giving you this much package, another company can give you this much package. Why should you stick with me? I can give, okay, I can give you some learnings, I can give you a very good environment to grow. So that's how there is. So we just grow each other, we just help each other to grow, and we just help each other hone our skills. Yeah. So that's how my daily days goes, and it is very well. I'm very satisfied. A very productive day, I would say. Yeah. So, sounds like you have a very well structured routine. What tools and technologies do you rely on most in your work?
Okay. Most I would say Python. Yeah, like Python is one thing. Like there are two main languages, Python and R. Mojo is coming, but I'm not seeing like anyone implementing it. Mojo is somewhat of Python and C mix, like C speed, but Python's OOP structure. So very well, very good. Like so, but mostly I'm working in Python. Yeah. पाइथन होगी पाइथन VS कोड हो गया लो जो भी आपके पास आईडीज है लाइक वी वर्क इन यूजुअली VS कोड वी यूज गेट आपका गिटहब का वो गिट यूज करना पड़ता है कोड पुश करना है एंड देन वी यूज जस्ट नॉर्मल यार कि जैसे अगर मुझे कुछ मॉडल्स बाय स्क्रैच बनाने को तो पाइटॉर्च हो गया ठीक है यूजुअली इन ML फॉर आई यूज पाइटॉर्च फिर लेट्स अगर मुझे कुछ आपका APIs यूज करने तो आपके पास सारे क्लाउड की APIs हो गई हाँ GCP आई यूज अ लॉट नाउअडेज क्योंकि हम जो फिगर है वो गूगल फॉर स्टार्टअप्स 2024 में है तो हमारे पास GCP की क्रेडिट्स है हमारे पास बहुत सारे तो मैं अभी GCP ही लर्न करता हूँ GCP से ही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करता हूँ क्योंकि गूगल क्लाउड में क्या क्या बकेट्स हैं क्या क्या आपके पास APIs है क्या क्या आपको मॉडल ट्यूनिंग करनी है एंड ऑल थिंग्स या तो मेरा भी यही टूल्स रहता है यूजुअली So, moving on, how do you approach problem solving when you encounter challenges in your projects? Is there any example of any tough problem that you have faced and how you overcame it? लेट्स से एक हाँ जैसे मैं कहूँगा कि इट्स अ काइंड ऑफ लाइक आई विल से जब मुझे कोई दिक्कत होती है लेट्स से ML इज नॉट अ पर्टिकुलर कि जो तुमको जो डेटा मिलेगा वो कुछ प्योर ML का कुछ डेटा नहीं होता हर डोमेन का एक डेटा होता है तुम ML वहाँ इम्प्लीमेंट करते हो जैसे तुम्हारे पास एक स्टार्स का फॉर्मूला है कोरिलेशन का तुम कोरिलेशन को अप्लाई करके कुछ निकालोगे कि भाई कोरिलेशन पॉजिटिव था नेगेटिव था क्या था तो इट्स अ टूल राइट तो हमारे पास डेटा हर डोमेन का हो सकता है तो लेट्स से मेरे को पता है यार मेरे को अभी डिजाइन का डेटा मिल रहा है कुछ लेट्स से जब मैं राइट सोनिक पे था तो मेरे पास कुछ यार आर्टिकल्स या किसी कंटेंट का डेटा मिल रहा है तो मैं उनकी टीम को रीच आउट करता था तो भाई आवर इंटरनल मैसेजिंग टूल लाइक स्लैक हो गया या आपके पास MS टीम्स थी तो हमने हमको रीच आउट किया मैंने कहा यार मुझे आपका डेटा समझाओ कि डेटा है क्या कहाँ से आया है ये डेटा और इसका मेन मोटिव क्या है जब ये इनपुट की तरह जाएगा तो मैं वहाँ पे फिर प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके नोट पैड पे नोट करता था एक एडवाइस करूंगा कि अगर आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो भाई एक नोट पैड रखो या एक चीज रखो कि एकदम से कुछ हो तो लिख दो कभी हो सकता है भूल जाओ या हो सकता है कुछ आपको नया कंसेप्ट है तो अपने लिख लेते इस पे याद रहे तो मैं ऐसे प्रॉब्लम ब्रेक डाउन करता हूँ कि हाँ यार मेरे स्मॉल स्टेप्स क्या है फिर उनको मैं कोड करना चालू करता था तो फिर वही जैसे तुम DA से भी करते हो राइट तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है तुम उसको बेसिकली पहले ब्रेक डाउन करोगे उसको कहीं लिखोगे फिर तुम उसको कोड करने बैठोगे दैट वे So, algorithms का breakdown. But अगर जैसे कोई नया स्टूडेंट है who is just really new to it, आप उसको क्या एक टिप दोगे कि how to get into this field? यार स्टार्ट से अगर प्यार है थोड़ा बहुत तो ही जाओ मैं कहूँगा ठीक है ज़्यादा भी नहीं चाहिए ना ज़्यादा कम चाहिए थोड़ा बहुत ठीक है बट अगर बिल्कुल है ही नहीं और तुम बस इस ट्रेंड की वजह से जा रहे हो तो तुम एक टाइम तक तो टिक लोगे फिर तुम्हारा डाउनफॉल होएगा फिर तुम वहाँ पे तुम एक वो क्या बोलते हैं इसको इम्पोस्टर सिंड्रोम ये सब लोग तो मेरे से आगे है मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा तो ये वो इसलिए होता है क्योंकि तुमको पता ही नहीं भाई फील्ड में क्या चल रहा है तुम फील्ड से अपडेटेड नहीं रहते तो वो चीज़ आती है That's a really valuable lesson in creativity and perseverance. So, machine learning projects are often involving not a lot of data, as you said. तो इसमें मैनेज एंड अगर कुछ डेटा भी होती है तो उसको प्रोसेस कैसे करोगे कि वो मॉडलिंग के लिए रेडी हो जाए? यार देखो लेट्स से भाई डेटा है तुम्हारे पास तो तुम यहाँ पे तुम्हारी ही प्योर स्टार्ट सकती है लेजेंड ठीक है तुम पहले देखोगे भाई डेटा में मिसिंग वैल्यूज नहीं है कि नहीं है जैसे तुमने फिर डेटा को वहाँ पे हटा दिया एक तो मिसिंग वैल्यूज का डेटा हो गया और एक नॉर्मल डेटा हो गया जो फुल है फिर वहाँ पे तुम डिस्ट्रीब्यूशंस देखोगे यार जब जो डेटा में पर कॉलम्स है क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है या कहीं पे राइट स्क्यूड है कहाँ पे लेफ्ट स्क्यूड है किसकी नंबर ऑफ सैंपल्स बहुत ज़्यादा है लेट्स से अगर मिसिंग वैल्यूज भी है लेट्स से डेटा है जिसमें मिसिंग वैल्यूज भी है तो क्या तुम इम्प्यूटेशन लगा सकते हो क्या तुम उन मिसिंग वैल्यूज को फिल कर सकते हो क्या मीन से मीडियन से मोड से और फिर वहाँ पे तुम देखोगे अच्छा यार मेरा मेन मोटिव क्या था अगर लेट्स से ये मेरा x वेरिएबल है मेरा y वेरिएबल क्या है मुझे निकालना क्या है मुझे मशीन को सिखाना क्या है बेसिकली तो फिर हम देखते हैं अच्छा अगर लीनियर रिग्रेशन है तो मेरे x पैरामीटर ये बनेगा y पैरामीटर मेरा ये बनेगा और मुझे ऐसे मॉडल करना है तो वहाँ पे तुमको देखना पड़ेगा यार जब एक आउटलायर्स पता होंगे राइट सबको आउटलायर्स क्या होते हैं तो आउटलायर्स भाई मुझे पहले आउटलायर्स से डील करना पड़ेगा भाई डेटा तो इतना था एक आउटलायर बिल्कुल यहाँ पे आ गया पीक वैल्यू पे तो वो रिजल्ट गलत दे रहा है तो मुझे वहाँ पे डेटा स्केलिंग करनी पड़ेगी यार कि आप मैक्स माइनस मिन अपॉन वो प्रॉपर मिन मैक्स रेंज तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको पहले स्टार्ट्स के फॉर्मूलेस लगाने पड़ेंगे फिर देखना पड़ता है आप जब पूरा आपका डेटा स्केल हो गया अच्छे से और कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं रही फिर देखना क्या ये कॉलम इस कॉलम के साथ कोरिलेशन में कैसा है तो आप पहले कोरिलेशन मैट्रिक्स निकालते हो
फिर देखते हो यार कि हाँ यार इसके साथ पॉजिटिव कोरिलेशन में ये ऐसे-ऐसे एक थ्रेशोल्ड हो गए, फिर इसको दोगे कि हाँ, अब हम इन दोनों को साथ में मॉडलिंग में दे सकते हैं। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो आपको बहुत सारे नॉर्मल स्टैट्स, क्लासिकल स्टैट्स आपको देखना पड़ेगा सारा। फिर आप देखोगे अच्छा अब कौन-सा मॉडल लगा सकते हैं? यार रिग्रेशन में भी लीनियर है, लॉजिस्टिक है, डिसीजन ट्रीज़ है। बहुत सारे वेरियस चीज़ें हैं। तो आप उसके हिसाब से बस मॉडलिंग लगाओ। फिर आपको देख लो भाई कौन-सा जैसे आपके सब मैट्रिक्स हो गए, हर चीज़ के आपके पास आर स्क्वायर मैट्रिक है, आपके पास एमएससी है, आपके पास एमएई है, ठीक है? तो आपके पास ये सारे मैट्रिक्स हो गए रिग्रेशन में। आपके पास क्लासिफिकेशन में अलग-अलग मैट्रिक्स आता है, एक्यूरेसी है, F1 है, आपके पास प्रिसिजन है, रिकॉल है, ठीक है? तो आप सारे मैट्रिक्स देखते हो, अच्छा कौन-सा मॉडल कहाँ पे ठीक हुआ, बस आप उस मॉडल को लेते हो सिंपल। So my next question would be कि how do you ensure that your models are interpretable and explainable? यार हाँ, इस चीज़ का मैं कहूँगा पर्टिकुलर मोस्टली मॉडल्स नहीं है इंटरप्रेटेबल, एक्सप्लेनेबल। क्लासिकल वाले फिर भी हैं थोड़े बहुत बट डीप लर्निंग मॉडल्स नहीं हैं अभी भी इतने एक्सप्लेनेबल। तो वहाँ पे लोगों ने ना लेटेस्ट रिसर्च पेपर्स में डिसीजन ट्रीज लगाना चालू करे। क्योंकि डिसीजन ट्रीज में तो ट्री बना सकते हो यार कि हम इस डिसीजन तक कहाँ से आए। तो वहाँ अब और इंटरप्रेटेबल के लिए भी बहुत सारे यार फ्रेमवर्क्स आई गेस सम लाइम वैल्यू इज देयर LIME आई एम नॉट श्योर बट एक है इस चीज़ पे। अगर इस चीज़ के बारे में लेजिट पढ़ना है ना तो रिस्पॉन्सिबल एंड सेफ एआई का एक ट्रिपल आईटी हैदराबाद का एक नोशन साइट है, आई विल शेयर दैट। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेनेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी की। तो देख ये मेरा टॉपिक ऐसा नहीं तो आई कांट कमेंट ऑन दिस वन टू बी ऑनेस्ट बट आई हैव सीन कि अगर इंटरप्रेटेबल एक्सप्लेनेबल है तो हमारे पास एक शार्प वैल्यूज रहती है जो तुमको बता देती है कहाँ पे तुम्हारा क्या गलत हो रहा है बेसिकली और तुम्हारा किस फैक्टर ने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। बेसिकली शार्प वैल्यूज होती है। तो आई गेस तुम उस वहाँ से बता सकते हो। इतना ही है आई गेस क्योंकि इंटरप्रेटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी का कोई इतना मुझे कुछ देख नहीं रहा है अभी जैसे राइट नाउ। अनटिल अनलेस कोई बड़े लोग नहीं है जहाँ पे तुमको बहुत लार्ज स्केल में डिप्लॉय करना चाहिए। लेट्स से यार मैंने कोई चैटबॉट डिप्लॉय कर दिया, जैसे चैट जीपीटी वगैरह आ गया या आपका कोई आज भारत जीपीटी हो गया, आईटी बॉम्बे का और बहुत सारी चीज़ें। तो वहाँ पे गवर्नमेंट बोलेगी यार मुझे बता भाई क्यों मैं तेरा जीपीटी डिप्लॉय होने दूँ? तो वहाँ पे इंटरप्रेटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी चाहिए। तो भी मेरा उतना काम पड़ा ही नहीं तो मैंने कभी ध्यान से पढ़ा नहीं इनके बारे में। Okay, so changing topics, what professions do you usually work with in your field? And उनके साथ how do you collaborate with them? यार मेरे पास जैसे एक हमारे फिगर में राइट नाउ एक एआई टीम हो गई, एक हमारी प्रॉपर डेव टीम है, मतलब वहाँ पे सारे वेब डेवलपर्स, ऐप डेवलपर्स सारे मिक्स हैं। फिर आपके पास एक जीटीएम है, ग्रोथ टेक मैनेजर, ठीक है। फिर आपके पास आई गेस डिज़ाइन टीम आ गई, ठीक है। तो अब इसमें क्या है फिर बाकी आपके फाउंडर्स वगैरह रह गए, ठीक है। तो जैसे हमारे कहते हैं जैसे हम एक वो रखते हैं बाई वीकली कॉल रखते हैं कि हम एक दूसरे को बताते हैं कि हमारे इसमें क्या-क्या चल रहा है, अपडेट्स क्या चल रहा है और हम वहीं पे साथ में बोलते हैं कि हाँ, तुम्हारे जैसे हमको डेटा में मिस्टेक आती है, तो हम डिज़ाइनर्स को कहते हैं, यार आपने जो हमको डेटा दिया, आपने जो हमको फिग्मा वगैरह ये सब दिया, इसमें ये चीज़ें थोड़ी मिस्टेक हुई हुई है। या फिर राइट सोनिक में भी हमारे होता है कि हर मतलब कोई भी कंपनी है वो एक वीकली कॉल रखते होंगे, टाउन हॉल मीट भी कहते हैं इसको। तो जहाँ पे वेरियस टीम्स आपस में कोलैबोरेट करती हैं, बताती हैं इन्होंने क्या-क्या किया और आपस में इनपुट आउटपुट लेते हैं। तो ऐसे ही कोलैबोरेशन वहाँ पे होता है। और लेट्स से अगर आपको कुछ वैसे है कि एकदम से प्रॉब्लम सॉल्व करते-करते आपको लग रहा है हाँ यार ये टीम मेरे यूज़ आ सकती है, तो यू जस्ट आपको इंटरनल मैसेज में डाल के देख लो। सो इफ इट वर्क्स वही चीज़ है। So my next question would be कि that communication is needed in your team, right? Yeah, any like Yeah. any different. So and machine learning is such a rapidly evolving field, right? तो उसमें इतने ज़्यादा trends and advancements के साथ how do you keep up with it? जैसे जब मैं डे ही स्टार्ट करता हूँ तो मैं अपनी स्क्रीन स्प्लिट हाफ कर देता हूँ। एक पे लिंक्डइन चल रहा होता है, एक पे ट्विटर चल रहा होता है, क्या भाई कि क्या चल रहा है बेसिकली टेक फील्ड में। फिर उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। फिर जैसे ही सैटरडे संडे वीकेंड आया तो मैं देखता हूँ अच्छा भाई मैंने इस हफ्ते क्या नोट डाउन किया था, क्या-क्या पढ़ना चाहिए इनमें से। तो आई जस्ट ग्रैब सम एंड पढ़ना चालू कर देता हूँ। बस ये बाकी यूजुअली मैं फॉलो करता हूँ यार जो भी इस फील्ड में भी टॉप पे चल रहे हैं। लेट्स से यार तुम्हारा एक मतलब जो भी कले इलॉन मस्क बोलता रहता है, सैम अल्टमैन है आपके पास, वापस यान लेकुन हो गया बेसिकली। तो जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल है मोस्टली बट उनमें भी उनकी जो टेक पार्ट ज़्यादा रहता है। मैं उनकी ज़्यादा इन्फ्लुएंस वाली बातों पे नहीं जाता, उससे जो उनका टेक वाली बात है वो ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो उससे थोड़ा पता लगता है कि हाँ यार ये चल रही चीज़ें, माइट बी ये फ्यूचर हो सकता है, हू नोज़। तो Okay, so that there's a situation where the available data that you have, it is very insufficient for training a model. So how do you approach that situation? अगर यार इनसफिशिएंट है तो देयर माइट बी वेरियस सिनेरियोस। फर्स्ट
लेट्स से यार इनसफिशिएंट क्यू है पे तो तुम ये जानो आया क्यू कहाँ से। लेट्स से तुम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो तुम बोल सकते हो यार कि लेट्स से भाई ये डेटा मुझे इस टीम से आ रहा है, इस टीम को बोल थोड़ा डेटा ज़्यादा दे। तो हम टीम को बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टीम भाई जो डेटा प्रोक्योर करने में थी बेसिकली तुम डेटा क्यों नहीं ला पाए। ठीक है फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग होगा लेट्स से भाई कुछ नहीं है बिल्कुल फर्स्ट केस यार हम डेटा कहीं से नहीं ला पा रहे। तो नाउ डेज अ थिंग इज कमिंग ऑफ सिंथेटिक डेटा यू जनरेट डेटा बेसिकली। तो लेट्स से यार मैंने यूजुअली लोग आजकल एलएलएम ही यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ में कि आपने डेटा अपने एलएलएम को थोड़ा सा डेटा प्रोवाइड किया और फिर उसी को बोल रहा है और मेरे लिए डेटा पॉइंट्स और डेटा सैंपल्स जनरेट कर। तो इसीलिए से सिंथेटिक डेटा भी आ रहा है। मोस्टली आजकल रिसर्च पेपर्स अगर आप देखोगे वहाँ पे सिंथेटिक डेटा लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उन पे खुद का डेटा नहीं है उतना और वेब स्क्रैपिंग वगैरह भी इतनी अलाउ नहीं होती। कुछ साइट्स कर देती है बट कुछ साइट्स आपको बैन कर देंगे। तो लेट्स से डेटा अगर इनसफिशिएंट भी है तो आपके पास बहुत सारे डेटा के सोर्सेज हैं। मैं एज अ पहले प्रोजेक्ट्स परस्पेक्टिव बताता हूँ, इंडस्ट्री का थोड़ा अलग है। प्रोजेक्ट्स परस्पेक्टिव में आप Kaggle जा सकते हो, Kaggle पे बहुत सारे डेटा सेट्स हैं, हगिंग फेस पे बहुत सारे डेटा सेट्स हैं और आप नेट को भी स्क्रैप कर सकते हो जितना मतलब जो भी साइट आपको दे देती हो डेटा। ठीक है, लेट्स से वी गो टू इंडस्ट्री टूवर्ड्स। तो इंडस्ट्री की साइड पे आप अगेन वेब स्क्रैप कर सकते हो बट आप Kaggle और हगिंग फेस का इतना यूज़ नहीं कर सकते। आई गेस आपको वहाँ पे थोड़ा अपने अराउंड डेटा चाहिए तो फिर आपको जनरेट ही करना पड़ेगा डेटा और कैसे भी देख सकते हो कि और कहाँ डेटा अवेलेबल है मोस्टली। बट हगिंग फेस और Kaggle माइट नॉट बी अ गुड फिट क्योंकि वहाँ पे ना ऑलरेडी क्लीन डेटा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि यार वो हम यूज़ कर सकते हैं किचन में। तो मैं थोड़ा वहाँ पे डाउट में जाता हूँ। तो ये तो तुम डेटा सेट्स ऐसे प्रोक्योर कर सकते हो और मोस्टली सिंथेटिक खुद का भी बना सकते हो अकॉर्डिंग टू योर यूज़ केस क्योंकि यूज़ केस सबको डिफरेंट हो जाएंगे। Okay, so what experience do you have with like cloud platforms for machine learning? ओके क्लाउड प्लेटफॉर्म्स या देखो मैंने AWS में एक डीप रेसर होता है तो एक वो मैंने किया था तो AWS थोड़ा बहुत सीखा था उसमें। वहाँ पे AWS SageMaker था, तुम्हारे पास AWS की लैम्डा भी कुछ था मतलब एक सर्विसेज थी AWS की। ठीक है, देन मणिपाल एंड IIT मद्रास में थोड़ा यार वो सिखाया था कि यार एज्योर कैसे यूज़ करना। इनके पे थोड़े आई गेस माइक्रोसॉफ्ट का इनका पूरा एक पैकेज था तो एज्योर क्रेडिट्स है तो एज्योर वगैरह यूज़ करना सीखा था। Then अभी लेटेस्टली आई एम वर्किंग ऑन गूगल क्लाउड क्योंकि एसेट की फिगर गूगल को स्टार्टअप 2024 में आया हुआ था तो GCP क्रेडिट्स से। तो फिर मैं थोड़ा GCP ही फॉलो करता हूँ यूजुअली कि यार गूगल में मतलब क्या चल रहा है इनके पे यहाँ पे क्या क्या वेक्टर स्टोर्स अवेलेबल हैं क्या क्या इनमें लेटेस्ट। अब जैसे कल ही आई गेस न्यूज़ आई थी कि जेमिनाई के जेम्स निकले हैं थोड़े की स्मॉल जेमिनाई मॉडल्स की जो तुम्हारे लिए पर्सनली प्रॉम्प्ट्स बना रखे हैं उन लोगों ने जेम्स। फिर तुम्हारे पास जेमिनाई के 8 भी वर्जन है न्यू न्यू थिंग्स राइट। तो इसलिए अभी हम प्रॉपर अभी उसी पे चलते हैं क्योंकि हमारे पास क्रेडिट्स साइड बाय साइड मैं ट्राई करता हूँ कि यार ठीक है लेट्स से जेमिनाई है हमारे पास ओपन एआई है सब है ये क्लोज सोर्स हो गए बट व्हाट अबाउट ओपन सोर्स क्योंकि मैं थोड़ा ओपन सोर्स एंथुसियास्ट हूँ यार तो मुझे हगिंग फेस थोड़ा प्यारा लगता है। मैं हगिंग फेस पे देखता तो अच्छा हाँ यार ये बेंचमार्क है कौन सा मॉडल टॉप पे चल रहा है हम इसको अपनी यूज केस के लिए कर सकते हैं उसके लिए फिर मैं उसके बाद में पढ़ता हूँ अच्छा मॉडल बना कैसे। तो सॉर्ट ऑफ ऐसे मेरा पता चलता है बट वही हाँ। You mentioned open source. तो ऐसे कौन से applications आप use करते हैं machine learning में especially? यार ओपन सोर्स के लिए यार आजकल Kaggle ने भी थोड़ा कॉपी किया हगिंग फेस को इन टर्म्स की Kaggle मॉडल्स लाए। इट्स नॉट दैट यूजफुल अभी राइट नाउ बट हगिंग फेस मेजरली है। हगिंग फेस ने मार्केट ले रखी है पूरी एकदम। हगिंग फेस पे सबने हगिंग फेस गिटहब बन चुका है ना यार मॉडल्स के लिए। तुम वहाँ पे जाओ वहाँ पे हगिंग फेस के ही तुम अपने SDK से तुम उसको कॉल कर लो बेसिकली। तब ऐसा कि हगिंग फेस बेस्ट है इस चीज़ में कि यार हगिंग फेस पे तुम जाओ तुम लिखो यार कौन सा मॉडल है। अब देख हगिंग फेस में इतने सारे ओपन सोर्स मॉडल्स आए मेटा ने इतने सारे रिलीज किए गूगल ने भी देख देख के रिलीज किया यार कि यार हमारे ये साला स्टॉक्स हमारे डुबा रहे हैं मेटा वाले हमको अपने ऊपर लेके जाना है हम भी अपने ये कैमरा वगैरह निकालेंगे। तो अब ऐसे कि दिस यार कि मुझे लगता है कि हगिंग फेस इज द बेस्ट राइट नाउ। Supervised and unsupervised learning का आप describe कैसे करोगे? यार देख सुपरवाइज में तुम्हारे पास डेटा पॉइंट्स रहेंगे राइट। तुम्हारे पास एक्स और वाई है तो तुम्हारे पास वाई है कि तुमको क्या करना चाहिए। अनसुपरवाइज थोड़ा वो है कि तुम्हारे पास वाई नहीं है। अब तुमको यार एक्स को क्लस्टर कर दिया तुमने क्लस्टरिंग एल्गोरिथम लगा दी फिर तुम कह रहे हो हाँ यार ये वाई बनेगा इसका या तुम ये वाई बना। तो अनसुपरवाइज में तुम्हारे पास डेटा लेबल्स नहीं है और वाई और सुपरवाइज में तुम्हारे डेटा लेबल्स है एनोटेटेड नॉन एनोटेटेड वही बात हो गई। So my next question would be कि how what's नहीं ये तो हो गया एक second. Can you walk me through your experience with ML frameworks and libraries that you're most comfortable with? यार फ्रेमवर्क्स अगेन मैं कह रहा हूँ ना कि अगेन वही बात आ गई तुमको पायटॉर्च हो गया या तुम जैसे हाँ ठीक है
फॉर लेट्स मैं पूरी स्टार्टिंग जर्नी से बताता हूँ कि स्टार्ट कैसा रहा पूरा। तो लेट्स से जब हम प्रॉपर में एक होता है तो हमारे पास अलग-अलग ना पोज़ीशंस होती हैं। एक होता है डेटा एनालिस्ट, एक होता है डेटा साइंटिस्ट, एक होता है एमएल इंजीनियर और फिर उसके बाद एक एमएल ऑप्स मतलब एमएल इंजीनियर में भी आ जाता है वो चीज़। तो और एक तुम्हारा उसके बाद आगे से नई-नई चीज़ें आ रही है एलएलएम इंजीनियर, एलएलएम ऑप्स बट उन सबको एमएल में ही डाल दो, तो एमएल इंजीनियर में ही आ गया सब। तो डेटा एनालिस्ट यार यूजुअली मैं कहूँगा तुम्हारे पास तुमको डेटा एनालिसिस करना है, उसको विजुअलाइज़ करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। तो वहाँ पे मेरे पास क्या फ्रेमवर्क्स आ गए, scikit-learn आ गया, ठीक है, sklearn बेसिकली इसको लोग कहते हैं। फिर तुम्हारे पास वहाँ पे scipy आ गया साइंटिफिक पाइथन के लिए। फिर तुम्हारे पास वहाँ पे विजुअलाइजिंग टूल्स आ गई, सॉरी वहाँ पे तुम्हारे पास pandas आ गया, pandas और SQL आ गया तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम pandas भी यूज़ करते हो, SQL भी यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू, ठीक है। फिर तुम्हारे पास कुछ कंपनीज एक्सेल भी यूज़ कराती हैं, तो तुम एक्सेल से भी करके देख लो। नहीं और फिर तुम फिर विजुअलाइज कैसे करोगे यार, मैटप्लॉटलिब है, सीबॉन है, ये पाइथन में हो गए। तुम्हारे पास मतलब तुमको नो कोड प्लेटफॉर्म चाहिए सॉर्ट ऑफ, भाई कोड नहीं करना, तुम्हारे पास पावर बीआई है और टैबलो है, तो तुम ऐसे प्रॉपर डेटा एनालिसिस करते हो, ठीक है। अब इसके बाद आ जाए डेटा साइंटिस्ट में, तुमको मॉडल्स बनाने हैं। तो मॉडल्स में क्लासिकल एमएल साइड में भाई scikit-learn इज द किंग राइट नाउ, कि तुम scikit-learn में या फिर numpy में अगर तुमको भाई बेयर कोड करना है, तुमको नहीं चाहिए कोई रैपर ऊपर का, तो तुम scikit-learn को उठा के numpy में कर लो, सिंपल सी बात, ठीक है। ये होगा डेटा साइंटिस्ट में। फिर तुम वहाँ पे देखते हो थोड़ा डिप्लॉयमेंट की ओर जाओगे तुम भाई कि अगर क्लासिकल मॉडल को भी डिप्लॉय करना है, तो वहाँ पे तुम्हारे पास फास्ट एपीआई रहता है, फ्लास्क रहते हैं कि तुम उसके थ्रू कैसे, Django भी है, 3 चीज़ें हैं, तुम कैसे अपने मॉडल्स को डिप्लॉय कर सकते हो एक एपीआई बना के उसका। फिर तुम्हारे पास जाके एमएलओप्स आ गया, तो तुम वहाँ पे यार अब डीएल आ गया डीप लर्निंग में। तो डीप लर्निंग में तुम्हारे पास 2 चीज़ें आ गई, तुम्हारे पास फ्रेमवर्क्स आ गए यार, एक तो तुम्हारे पास पायटॉर्च, एक तुम्हारा टेंसरफ्लो है। पहले मार्केट टेंसरफ्लो की थी, अब आई गेस जो मुझे लगता है पायटॉर्च की ज़्यादा मार्केट है। तो पायटॉर्च लोग यूज़ करते हैं। कुछ कंपनीज वो भी यूज़ करते हैं, मैं फ्रेमवर्क जैक्स आई गेस गूगल ही यूज़ करता है मेजरली जैक्स, JAX। तो जैक्स इज लाइक numpy ऑन स्टेरॉइड्स, इसलिए अगर numpy तुमको 5 सेकंड मिलता है, वो 0.5 सेकंड्स बाद देता है। तो जैक्स बड़ा मस्त है यार। तो कुछ कंपनी जैक्स भी यूज़ करती है। तो और आई गेस एक पैडिंग, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स है, पैडिंग है, बहुत सारे नए-नए फ्रेमवर्क्स हैं, तुम जा सकते हो सर्च कर सकते हो उस पे। तो मैं कहूँगा मैं पायटॉर्च पे ही गया फिर डीएल साइड में। तो पायटॉर्च में चीज़ें लिखी, देखा भाई ऑप्टिमाइज़र डॉट ग्रेड, ज़ीरो डॉट ग्रेड, ये चीज़ें क्या-क्या हैं, कैसे तुम एक फॉर लूप में ट्रेन करोगे पूरे मॉडल को, बड़े मॉडल को। फिर वहाँ पे हमने देखा कि अच्छा पायटॉर्च हो गया। अब लोग कहते हैं यार पायटॉर्च में तुम कोड लिख रहे हो इतना बड़ा एक मॉडल का, क्या तुम छोटे-छोटे मॉडल्स कॉल वैसे ही नहीं कर सकते? तो समझ में आया, अच्छा हाँ यार, हगिंग फेस पे तो इनके मॉडल्स पहले डिप्लॉय हुए हुए हैं। फिर वहाँ से मैंने हगिंग फेस के बारे में सीखा। तो फिर ऐसे-ऐसे मैं फ्रेमवर्क्स चेंज कर के एक्सपेरिमेंट कर लर्न करता गया। क्योंकि यार एमएल या कोई भी फील्ड है ना, टेक्निकल फील्ड, तुमको कोई भी टेक्निकल, जैसे यार मैं टेक फील्ड में हूँ, मैं बोलता हूँ मुझे अभी वेब डेवलपमेंट नहीं अच्छी लग रही कि, और क्या मैं मुझे मन नहीं कर रहा करने का। क्यों नहीं अच्छी लग रही? क्योंकि मैंने उतना एफर्ट मैं भी पुट नहीं किया वहाँ पे, जितना उस फील्ड को लर्न करने में चाहिए था। तो बात वो आती है कि तुम्हारे पास डिफरेंट फील्ड्स हैं, तो मेरे को लगता है कि कोई भी फील्ड में तुमको लर्न एक्सपेरिमेंट ये साइकिल चलती जाएगी। तो मैंने फ्रेमवर्क से यूजुअली ऐसे ही किया। What do you think is the most जो अभी 10 years में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई एप्लीकेशन? एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एप्लीकेशन और फ्रेमवर्क, बोथ वर्क। फिर पायटॉर्च ही है। और PyTorch। एक और लाइक लुक आउट फॉर मोजो, आई गेस MOJO। तो मोजो मैं कहूँगा लुक आउट कर सकते हो, बट आई गेस पायटॉर्च अभी मोस्टली डिप्लॉयमेंट में जब वही पायटॉर्च लोग यूज़ कर रहे हैं, तो व्हाई नॉट? कुछ कंपनीज की वजह से जीपीयू है ही नहीं और उनको बहुत चीज़ें फास्ट चाहिए, तो वो scikit-learn में कोड कर रहे हैं। तो लेट्स से माय सीनियर वाज इन Zscaler, तो Zscaler में दे नेवर यूज्ड एनी डीएल फ्रेमवर्क, दे ओनली यूज्ड लाइक scikit-learn पे सारी चीज़ें क्लासिकल एमएल में चल रही है। एंड आई वाज लाइक ओके क्या चल रहा है ये, बहुत फास्ट कर रहे हो तुम, ठीक है। तो वो चीज़ रहती है तुमको वहाँ पे ना, जो तुमको स्पीड है, स्पीड के अनुसार तुम्हारे फ्रेमवर्क चेंज होंगे कि कौन सा फ्रेमवर्क किस फील्ड में क्या अच्छा है। Okay, so if someone wants to change fields, I guess, तो machine learning से what do you think might be the most similar fields? लाइक तुम कह सब रहे हो तो कि एक साथ वर्क करते हैं, लाइक टेक हम्म, फील्ड में तो ऑब्वियस है, बट अगर इफ समवन इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन मशीन लर्निंग एनीमोर कि यूज तो करना है बट आगे और करना है, तो क्या होगा? यार मैं कहूँगा वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। वेब डेवलपमेंट में भी तुम आजकल लोग क्या करते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, एक चैटबॉट लगा देंगे, वहाँ पे पीछे एपीआईज ही यूज़ कर लेंगे। तो तुमको अगर मशीन लर्निंग का थोड़ा भी पर्सपेक्टिव रखना ही है बस, बाकी तुमको भाई फील्ड ही चेंज करनी है टेक में ही। तो वेब डेवलपमेंट इज माइट गुड, ऐप डेवलपमेंट भी है, बहुत सी चीज़ें। मतलब यही 3 है मेजर यार, ऐप है, वापस वेब है और क्या है। तुम इन दी Yeah. चीज़ बेचोगे क्या? तुमको क्या दिख रही है? मे बी ये जैसे इंटरफेस है ना, राइट?
तो तुम्हारे पास एक ऐप होएगी या तुम्हारे पास एक वेब इंटरफेस है, तो इन तुमको वही दोनों में से कोई चीज़ तो करनी पड़ेगी। So, what is some excellent advice that you would give to aspiring machine learning engineers? यार मैं कहूँगा जितना इसमें भी 2 चीज़ें हैं, अगर तुम्हारे पास 2 जैसे या तुमको बड़ी कंपनीज़ में जाना है, फैंग में, लेट्स से एक तो पहले हाई बना रखी है टेक इन्फ्लुएंसर्स ने 100 से, भाई फैंग कुछ नहीं है, इंडियन भाई सब लोग पैसे पे ही ज़िंदा रहते हैं दुनिया में, ठीक है? तो मैं कहूँगा तुमको इंडियन अगर पैसा बनाने का मतलब है, तुमको तो मैं कहूँगा फैंग में भी पैसा है और कंपनीज़ में भी पैसा है, जस्ट सर्च लिटिल बिट मोर, ठीक है? अगेन सेकंड थिंग, फैंग में जाने के लिए इन एमएल भाई या तो तुम आईआईटी क्रैक कर लो, बीटेक मिल जाएगी, कोई भी फैंग एमएल या एमएल जो तुमको चाहिए, वरना कुछ तो बीटेक आईआईटी वालों को भी नहीं मिलती, तुमको एमटेक या एमएस करनी पड़ेगी, देन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एमएल का रोल देंगे, या फिर सबसे बेस्ट आई गेस या माय नेटवर्क या आई गेस इट्स वर्किंग या सो हेलो आई एम ऑडिबल Yes, you are. okay You're audible. Yeah. okay I guess my network free, sorry, yeah so I was saying कि यार जैसे अगर तुम एमएस एमटेक कर ली या फिर मैं कहूँगा तुम वो कर लो सीधा बीटेक के बाद, तो दैट विल गिव यू गुड बूस्ट, बट मैं कहूँगा आईआईटी से ही प्रेफर करना थोड़ी सी, अगर तुम इंडिया में हो, बट फॉरेन में कहीं पे भी जा सकते हो। एंड इफ तुमको एमएस एमटेक नहीं करनी, तुम्हारा फर्स्ट ईयर से तुम बना के आए हो, लेट्स से, तो मैं कहूँगा यार इंडस्ट्री पे ना बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक्स हो जाना, इंडस्ट्री में इंटर्नशिप्स करते रहना, इफ़ योर कॉलेज अलाउस कि तुम साइड बाय साइड जा सकते हो, समर वेकेशंस में कर लो इफ पॉसिबल, ठीक है? 2 महीने की हो गई तुम्हारे पास, 1 डेढ़ महीने की हो गई, ठीक है? देन उसके बाद तुम साथ-साथ बाहर जा सकते हो, क्या बोलते हैं, आरशिप्स कर सकते हो, रिसर्च असिस्टेंटशिप्स विद प्रोफेसर्स, कोई रिसर्च पेपर लिख सकते हो। तो ऐसे कर के तुमको माइट बी स्टार्टअप्स या तुमको माइट बी मिड साइज़ स्टार्टअप्स जो कंपनीज़ एक्चुअली जो यूनिकॉर्न्स के हो जा रहे हैं, दे माइट पोच यू और दे माइट ओके मेल यू कि यार तुम हमारे साथ काम कर सकते हो। बड़ी कंपनीज़ के लिए यार मेजरली फैंग में ही जाना है, तो डीएसए इज़ द बेस्ट। मैंने फैंग की जीडी खोली, वहाँ पे उन्होंने लिखा है मस्ट हैव डीएसए, अगर नहीं भी चलेगा तो वहाँ पे नीचे उन्होंने एमएल वगैरह लिख रखी है, तो मैंने कहा अरे क्या चल रहा है, तो उसके बाद तुमको डीएसए चाहिए। तो आई विल से कि यार अकॉर्डिंग टू यू कि तुमको कहाँ जाना है। मेरी जर्नी में मेरे को लगता है कि मैं अगर फैंग में भी जाऊँ तो एज अ मैनेजर ये कभी बाद में जाऊँगा आफ्टर सम गुड एक्सपीरियंस 6 to 7 years। अभी तो मैं स्टार्टअप में ही एंजॉय करूँगा, सारे स्टार्टअप्स बिल्ड करूँगा, एक अपने लिए वैल्यू लाऊंगा। So, what skills do you think are your strongest, and what do you think you might have to develop on? ओके यार मेरे को लगता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट मेरे में अभी यार नहीं है, मैं कहूँगा जो मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट है मुझे वही डेवलप करने हैं आई गेस। आई कांट मैं आई एम नॉट दैट नार्सिसिस्टिक कि मैं अपने आप को ग्रेड्स दूँ कि हाँ भाई मेरी ये स्किल अच्छी है, ये स्किल खराब है। तो मैं सिंपल ये बोलूँगा, जैसे जो मैं कह रहा हूँ पाइथन हो गया या भाई पाइटॉर्च हो गया, या यार ये हगिंग फेस में भी तुमको कौन से मॉडल्स बनाने हैं, कौन सी बेंचमार्किंग कैसे करनी होती है, या डिप्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव क्या होता है। तो अभी लेट्स से तो मुझे यही चीज़ें दोबारा अच्छे से मैं सीखता रहता हूँ, रिफाइन करता रहता हूँ। अभी लेट्स अगर मैं एक एमएल इंजीनियर हूँ, तो जो मेरे साथ सीनियर एमएल इंजीनियर है, तो मैं उसका माइंड देखता हूँ कि यार वो उसके और मेरी थिंकिंग में कहाँ गैप आ रहा है, क्योंकि दैट्स व्हाट्स हमको डिफरेंशिएट कर रहा है, राइट? कि एमएल इंजीनियर को सीनियर एमएल इंजीनियर से। तो मैं वही थोड़ी थिंकिंग अपने में डेवलप करना चाह रहा हूँ, तो मैं वही ऑब्जर्व करता रहता हूँ मैं कि हाँ यार ये प्रॉब्लम को पहले सोचता है फिर ये कोड में जाता है। मेरा उल्टा है कि मैं ही स्टार्टिंग में कोड करना चालू कर देता हूँ, मैं प्रॉब्लम को थोड़ी बाद में सोचता हूँ। सो फर्स्ट थिंग जो मुझे अपने में डेवलप करनी है, हाँ पहले प्रॉब्लम को सोचने में टाइम लगाना है बहुत, फिर कोड करना है, नॉट द अदर वे अराउंड जो मैं पहले करता था। अब अगस्त से मैं थोड़ा ठीक कर रहा हूँ कि हाँ पहले प्रॉब्लम को सोचो फिर कोड करो। तो ये चीज़ें हैं, तो मैंने ये चीज़ सीखी, हाँ यार ये ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। अब कोई भी एमएल का फ्रेमवर्क है तो उसपे स्ट्रिक्टली नहीं करना, पहले देखना है कौन सा हमारी यूज़ केस के लिए मैट बी बेस्ट है, फिर वो यूज़ करना, सिंपल। My next question would be: is there any recommendation for any certifications for new ML learners or courses भी कुछ भी just that could यार help them? मैं कहूँगा कोर्सेरा पे जा कर सकते हो, एमएल स्पेशलाइजेशन है उसकी, एंड्रू इंजी की, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन भी है, ठीक है। बट मैं कहूँगा आई डोंट नो यार, मैंने देखा था कि वो उतना इन डेप्थ कवर नहीं कर रहा होगा। उसके ना जो पुराने स्टैनफोर्ड ऑनलाइन के लेक्चर्स थे ना, यूट्यूब पे अवेलेबल है 1.5 घंटे के, वो बहुत इन डेप्थ है। इवन परप्लेक्सिटी के कल ही परसों सीईओ की पॉडकास्ट आई है उसके साथ, ईशान शर्मा के साथ। ये क्लियरली स्टडी है, मैंने जॉफ्री हिंटन, एंड्रू इंजी, सबके मैंने यूट्यूब वाले वो कोर्सेज किए थे। तो मेरे को इतनी सारी लर्निंग आई। तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत तुम उसी में जा सकते हो कि तुम थोड़े इनके जो ओल्ड प्रोफेसर्स के जो यूट्यूब पे लेक्चर्स हैं,
MIT की स्टैनफोर्ड के वो पूरा देख लो टाइम निकाल के। इफ नॉट कि तुमको लग रहा है लेक्चर्स बहुत बड़े हैं, तो उन्होंने स्टार्टिंग में कहा दे आर प्रिस्क्राइबिंग दिस बुक टू रीड, टेक अ बुक ना, रीड इट। तो तुम वो चीज़ें कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कोर्सेस इन द सर्टिफिकेशन सेंस में यार, वेट्स एंड बायस एक टूल है ऑब्जर्वेबिलिटी के लिए, कि तुमको अगर ML ऑप्स तुमको कुछ ऑब्जर्व करनी हो, लॉगिंग करनी हो बेसिकली, यार ये मेरे मैट्रिक्स ये थे, यहाँ पे मैट्रिक्स ड्रॉप हुए हैं, तो वो एक टेबल बना के देता है वेट्स एंड बायस उनके EOI में। तो उसमें वहाँ पे कुछ उनके कोर्सेज है वो कर सकते हो, कैगल पे कोर्सेज है उनके वो कर सकते हो, हगिंग फेस के खुद के कोर्सेज हैं जो अप्लाइड है, बहुत प्यारे कोर्सेज हैं, वो कर सकते हो। फिर ये हो गए DL पर्सपेक्टिव में, थोड़ा DL और उसमें क्या बोलते हैं डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि थोड़ा उस और भी मैं हूँ, राइट। अगर तुमको बहुत क्लासिकल ML साइड में जाना है तो यार ML स्पेशलाइजेशन कर लो उसकी, इसकी क्या एंड्रॉइड की। और तुमको करना है यार कि तुमको और सर्टिफिकेशन जैसे चाहिए, तो ये IIT मद्रास वाला जो मैं कर रहा हूँ उसको एक डिप्लोमा लेवल, सीधा तुम फाउंडेशन लेवल पे मत आओ, सीधा डिप्लोमा लेवल में एंट्री करो, डिप्लोमा इन डेटा साइंस में, वहाँ पे सारे डेटा साइंस से कर लो, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो वो कर सकते हो। तो वो चीज़ है। So, if you had like a dream machine learning project, what would it be? ड्रीम मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, यार मेरा तो यही मन था यार कि RL रेनफोर्समेंट लर्निंग ढंग से पढ़ पढ़ के प्रॉपर एक रोबोट में लगानी है, देखना भाई वो रोबोट कैसे चल रहा है, वो कैसे क्या हो रहा है। तो एक ड्रीम तो वही रहेगा कभी ना कभी, तो कि रोबोट के अंदर वो चीज़ डाल के देखनी है क्या होता है। तो वही, क्योंकि इंडियन AI हम अभी भी बहुत क्या यूज़ कर रहे हैं, हम अभी लैपटॉप पे ही यूज़ करते हैं मोस्टली, किसी एप्लीकेशन या वेबसाइट। तो मैं चाहता हूँ कुछ रियल वो हो यार, कुछ फिजिकल वो चीज़ हो, दिखे यार, जैसे ऑटोनोमस कार हो गई यार, तुम्हारे पास रोबोट्स हो, जिससे मैं कहूँगा इंडिया में चाहे माइट नॉट नहीं है, बट US जापान में बहुत है वो चीज़ें। तो मैं वो थोड़ा वो देखना चाहूँगा कि यार वहाँ पे कैसे वो चीज़ आ सकती है। और इंडिया में भी जैसे ड्रोन नेविगेशन में आजकल लगा रही है कुछ कुछ कंपनीज या कुछ कुछ गवर्नमेंट्स लगा रहे हैं, लेट्स सी क्या हो रहा है। So, how do you see your role within your team? अभी जैसे एक्सपीरियंस आपका बढ़ता जा रहा है, डू यू एस्पायर कि कितना स्पेशलाइजेशन होए एक टेक्निकल एरिया में? यार नहीं, माइट बी, मतलब जैसे मेरे को लगता है कि मेरा क्या था, मेरे पास एक्सपीरियंसेस रहे, राइट, स्टार्टिंग से। और मैंने स्पेशलाइजेशन ऐसा मेरे पास डीप लर्निंग पढ़ा, उसमें भी मैं नेचुरल लैंग्वेज की ज़्यादा गया। तो लेट्स से यार अगेन डिपेंड करेगा कंपनी टू कंपनी। कुछ कंपनी साइड तुमको कंप्यूटर विजन माइट भी इतना नहीं चाहिए, या कुछ साइड तुमको NLP ये साइड नहीं चाहिए। तो अगेन कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। लेट्स से फैंग में जो तुमको सभी चाहिए होता है, ठीक है, बट लेट्स से भाई तुम्हारे पास बहुत स्टार्टअप्स होगा जो बहुत बड़ी नीश प्रॉब्लम पे फोकस कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट नीश तुमको तुम्हारी स्पेशलाइजेशन लानी पड़ेगी। अभी राइट नाउ मैं बस इन जनरल DL सीख रहा हूँ उनसे, कि यार अच्छा यार मैंने, चलो मैंने मॉडल तो बना दिया, कोड वोड कर लिया, मैंने उसको डिप्लॉय भी कर दिया, डिप्लॉयमेंट में क्या क्या चीज़ें फट सकती है यार। ML ऑप्स बेसिकली क्या है, वो ये चीज़ है कि तुम डिप्लॉय कैसे कर रहे हो, तुम वो चीज़ की पाइपलाइनिंग कैसे कर रहे हो। तो मैं वो उसके बारे में थोड़ा और सीख रहा हूँ कि हाँ यार ये सीख सकता हूँ, ये सीख सकता हूँ, बस तो वो चीज़ें चलती है। तो मैं कहूँगा कि ऑन द वे तो तुमको यही बस स्पेशलाइजेशन इसी में लानी चाहिए। अगर तुमको पहले डेटा एनालिस्ट से डेटा साइंस में जाना है, तुम पहले मॉडलिंग वगैरह सीखो, तो तुम डेटा एनालिस्ट में भी जाके एक एंट्री लेवल पे जाके फिर तुम डेटा साइंस में जा सकते हो। लेट्स से आफ्टर डेटा साइंस तुमको लग रहा है कि नहीं यार मेरे को और डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट की हो जाएगी, तो तुम डेटा साइंटिस्ट को छोड़ के उसकी ओर जा सकते हो। एक फील्ड है मैं जो तीनों में ही बोलना भूल गया, डेटा इंजीनियरिंग, जो प्रॉपर डेटा बेसिस के बारे में देखते हैं, तो तुम वो भी चीज़ ट्राई कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें, तो तुम्हारी स्पेशलाइजेशन डिपेंड करेगी तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, तुम्हारा तुमको लगता है वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे इस रोल में ठीक रहेगा, इसकी सैलरी ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स। वर्क लाइफ बैलेंस की बात करते हुए, हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ? even I don't know that answer. यार ये तो नहीं, ये तो है ही नहीं वर्क लाइफ अभी, मतलब यार देख जनरली अभी देख सैटरडे को भी मैं अभी ऑफिस में ही बैठा हूँ। तो ओके। वर्क लाइफ सॉर्ट ऑफ मैं कहूँगा बैलेंस इस वे में कि अभी हमारे यहाँ पे कल्चर ऐसा है, तुम कभी भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। सॉर्ट ऑफ वर्क वैसे ना वर्किंग आवर्स का 9 to 6 बैठना ही है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऑफिस में सब बहुत वो सपोर्टिव है, तो मेरा मन भी करता ही है कि भाई आ ही जाओ। तो लेट्स से यहाँ पे खाना वगैरह सब प्रोवाइड है, मस्त बिल्कुल मस्त, मेरा ऑफिस अब अच्छा खासा है। तो अब हम मेरी इच्छा होती है कि यहाँ पे आओ, यहाँ पे वर्क लाइफ की बात करूँ, अभी मैं कुछ काम कर लिया 1-2 घंटे, फिर मैंने चलो लैपटॉप बंद कर दिया, फिर मैं कुछ बाहर घूम लिया या कुछ और कहीं चला गया। तो वर्क लाइफ बैलेंस वैसे मेंटेन कि अगर मुझे छुट्टी लेनी हो छुट्टी ले सकूँ, कोई दिक्कत नहीं। बट मैं कहूँगा मेरी ये गलती है कि मेरे अंदर एक क्यूरियोसिटी का दिमाग रहता है कि भाई कुछ पढ़ना है, तो वो मेरे को ही कुछ आपस में ही वो कर रहा है कि भाई सेल्फ वो कर रहा है कि वो नहीं करना चाहिए।
तो मेरे को वो लगती है वर्क लाइफ बैलेंस खुद से ही तुमको पहले ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तुम्हारी क्या-क्या छोटी-छोटी चीज़ें जो तुम्हारा वर्क लाइफ बैलेंस खराब कर रही है। तो रिगार्डिंग वही रहता है। Okay, so anything last that you would like to say to our listeners? यार कि अगेन देयर आर 2 थिंग्स इन एमएल, ईदर वे इट्स अ इंडस्ट्री रूट और अ रिसर्च रूट। तो तुमको दोनों एक्सपीरियंसेस एक बार करने ही चाहिए अपनी 4 इयर्स की जर्नी में, 3 इयर्स की जर्नी में, जैसे भी तुम्हारा मतलब कोई भी तुम्हारा अगर बीएससी है या तुम्हारा बीटेक है, कुछ भी है। तो मैं कहूँगा कि यार लेट्स से तुम्हारे पास बीटेक, बीएससी दोनों में से कुछ है, तो मैं कहूँगा पहले तो तुम चाहे आरशिप से स्टार्ट करो, प्रोफेसरों को कोड मेल करो। इससे तुम पहले कोड मेल करना सीखो कि अपने को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कोड मेलिंग में, ठीक है? फिर तुम उसमें एक रिज्यूमे बनाओगे, तो अच्छा तुम उससे सीखोगे अच्छा रिज्यूमे कैसे ड्राफ्ट करना है, क्या-क्या चीज़ें रिज्यूमे में लिखनी होती है, क्या-क्या नहीं लिखनी होती। फिर उसके बाद तुम प्रोफेसर के साथ काम करो, उनसे एलओआर लो, उनसे इंटर्नशिप्स के सर्टिफिकेट्स वगैरह लो। तो उससे तुम ये भी सीख सकते हो कि प्रोफेसर बहुत अच्छे हाई लेवल का प्रोफेसर होगा, उस पे रिसोर्सेज रहेंगे, तो तुम वहाँ पे उन रिसोर्सेज को यूज़ करके जैसे जीपीएस वगैरह, तो तुम खुद से भी एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें सीख सकते हो लैब्स में थोड़ा एक्स्ट्रा आवर्स बैठ के। फर्स्ट थिंग ये होगी। नेक्स्ट थिंग ये होगी, आफ्टर अ प्रोफेसर गो फॉर एनी इंडस्ट्री इंटर्नशिप और इंडस्ट्री सिलेक्शन जो भी मिल सकता है। एमएल में इंटर्नशिप्स माइट भी मिल जाए, बट फुल टाइम रोल्स मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो तुम ट्राई करो क्या क्या इंटर्नशिप कहीं मिल जाए क्या, मतलब लेट्स से उस रोल का नाम माइट भी थोड़ा डिफरेंट हो, बट उसमें हो सकता है एमएल इन्वॉल्व फॉर यू, टेक एक्सपीरियंस ऑफ दैट। तो उससे तुम थोड़ा हाई स्किल कर सकते हो। मोस्टली तुम्हारे जो भी तुम्हारी इंटर्नशिप्स वगैरह है वो बहुत मैटर करेंगे, और करियर के थ्रू आउट तुमने लेट्स से तुम एक एक्स जॉब में गए, तुमने उसके पहले डब्ल्यू जॉब में क्या किया था वो मैटर करता है। चाहे डब्ल्यू कहाँ किया था वो कुछ मैटर करता है कि भाई वो डब्ल्यू क्या था, गूगल था या कौन सी कंपनी थी, बट मोस्टली डब्ल्यू के अंदर क्या काम किया वो मैटर करता है। तो तुम जहाँ पर भी जाओगे ट्राई करोगे सबसे इम्पैक्टफुल ट्राई करो कि अपनी टीम का ऊपर, तभी आई गो फॉर स्टार्टअप्स, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग ही नहीं होंगे ना तुम्हें, मेरे को पता है मेरे को ही सब करना है, मजा आएगा, मैं सीखूंगा। तो दैट्स वाई एक रखो कि मैंने जो अपने कजन से सीखा, फैमिली से सीखा, इंडस्ट्री मतलब बिग कंपनीज आर गुड, बट बिग कंपनीज में यूजुअली लोग आइडेंटिटी लॉस कर जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट के अंदर एक छोटा सा फीचर है, उस छोटे से फीचर की एक अलग सी टीम होती है भाई। तो और जो टीम लगाती है भाई 1 महीना 2 महीने वो फीचर लाने में, स्टार्टअप्स को 1 हफ्ते में कर लेते हैं या हार्डली 2 हफ्ते में कर लेते हैं। स्टार्टअप्स में तो बहुत सारी मल्टीपल हैट्स पहनते हो यार। मैं कभी अगर इसका एमएल का भी काम करूँ, मैं डेटा एनालिस्ट का भी काम करूँ, डेटा साइंटिस्ट का भी काम करूँ, बहुत सारी चीज़ें, तो तुम लर्निंग से तुम्हारी कंटिन्यूस रहती है। तो मैं कहूँगा कि यार वे करो, एक नोट पैड लो, कुछ भी लो, लिखो कि यार मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे स्टार्टअप में जाना है, मुझे यहाँ एमएस करने है, और प्रोस कॉन्स एक बार नोट करो, और फिर एक रोड मैप जो है ये ही करना है। मैं कहूँगा किसी की भी मतलब सबकी सुनो, पहले पर्सपेक्टिव लो, उसको लिखो, फिर अपना एक पर्सपेक्टिव लिखो, फिर उसके ऊपर तुम लो हाँ मुझे ये फॉलो करना है। होता क्या हम ना, हमारी एज अभी ऐसी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता है, इन्फ्लुएंस नहीं होना। तो मैं कहूँगा कि पहले भी इंडस्ट्री को देखो क्या क्या है, अपने पेरेंट्स से पूछो, उनके दोस्तों से पूछो, अपने आसपास के लोगों से पूछो, फिर आगे प्रूफ करो हाँ यार मेरे को मिले ये रोड मैप अच्छा है। वरना तो तुम इन्फ्लुएंस होते रहोगे ना इन्फ्लुएंसरों से, तो इनको तो व्यूज बढ़ता रहेंगे, इन पे पैसा आता रहेगा, तुम्हारा कुछ लॉस ही होता रहेगा। तो मैं कहूँगा इन्फ्लुएंसर पे तो मत ही जाना, बस बाकी रीच आउट करो। जैसे रिद्धि हो गया, आपने भी जैसे मुझे लिंक्डइन पे रीच आउट किया, तो ऐसे ही मैं कहूँगा लोगों को भाई तुम भी लिंक्डइन पे प्रोफेशनल लोगों से रीच आउट करो, उनसे पूछो यार हमको क्या करना चाहिए, क्योंकि कोई पोस्ट होगी तो उसमें उन्होंने कुछ लिखा होगा कि नहीं। इन्फ्लुएंसरों पे ये कॉमन है, वो कहीं ना कहीं कुछ काम करते ही नहीं है, वो सिर्फ यूट्यूब पे ही फुल टाइम मिल जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देख लिया होता है माइंड भी कि यार इंडस्ट्री में या तो उनको पैसे नहीं मिल रहे या उनको कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, तभी वो थोड़ी यूट्यूब के रूट में गए हैं। मैं कहूँगा कि ठीक है इन्फ्लुएंसर्स भी ठीक है अपने कहीं टाइम पे, बट ज़्यादा नहीं। मैं कहूँगा कि तुमको इंडस्ट्री टारगेट करनी तो इंडस्ट्री के लोगों पे से पूछते रहो क्या क्या करना चाहिए। That's all. That's actually great, very great advice, I would say. Thank you so much for joining us today, Sayam, and for sharing such valuable insights into the life of a machine learning engineer. Thank you to our listeners for tuning in to this episode of Technophile Society. Do not forget to subscribe and follow us for more tech talks and interviews with industry experts. Until next time, keep exploring and stay curious.